what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right It's question. an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's action? And then you cannot equate. This is not about support. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है फ़लस्तीनी एम्बेसडर से कि आप हमास की तरफ से किए गए हमलों की सपोर्ट करते हैं, चाहे बीबीसी हो, चाहे CNN हो, चाहे फॉक्स न्यूज़ हो या स्काई न्यूज़ हो। वेस्ट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिशों में लगा हुआ है कि किस तरीके से केस को मिस रिप्रेजेंट किया जा सके, जो कि ये साल से और फॉर डिकेड्स उनका ये तुरा इम्तियाज़ रहा है। यहाँ पर भी जो है, लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा यूँ डिफरेंट है कि डॉक्टर हुसाम जो एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं इसकी तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से, और जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब बात करते हैं तो वो फ़लस्तीन के लोगों की बात करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि क्या आप कंडेम करते हैं, तो बिल्कुल ये उससे कि उस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हुए अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं कि मैं उस पर कंडेम करने नहीं आया हूँ, मैं फ़लस्तीनियों का केस लड़ने के लिए मौजूद हूँ। और इससे पहले आपने इसराइली मिनिस्टर्स से और इसराइलियों से आपने जो है बारहा इंटरव्यूज़ उनके लिए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनसे ये कहा हो कि सिविलियंस पे जो अटैक्स किए गए हैं इसराइलीज़ की तरफ से, क्या उनको वो कंडेम करते हैं? क्या आप इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं? क्या आपने इस तरीके से उनको कभी बुलाया है? कभी स्ट्राइक्स उनकी तरफ से हुई हैं और उन्होंने, जो कि डेली बेसिस पर उनका एक प्रैक्टिस है जिसमें स्ट्राइक्स वो करते रहते हैं, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर इसी किस्म के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और डॉक्टर हुसाम जो है उसको इस अंदाज़ में जवाबात को ले रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज़ में जो है वो फैक्ट्स बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएबल है कि मैं इस वक्त जितनी ज़रूरत जो है मैदान में हमास की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ज़रूरत है क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो जाएं जो लोगों को फैक्ट्स बताएं, उनको जो है ना वो इस तरीके से उनको आगाह करें, अवेयरनेस जो है लोगों में लेके आएँ। To understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kill civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle. You just condemned Israel for killing civilians and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what the Israelis have seen, which we started by saying. बहुत अच्छा पॉइंट है इनका कि इससे पहले क्या जब फ़लस्तीन पर इतनी इस ख़तरनाक किस्म की बमबारी हो रही है और पता नहीं किस किस्म के जो है ना वो हथियार वहाँ पर उनको टेस्ट किए गए हैं और इनको एक्सपेरिमेंट किए गए फ़लस्तीनियन लोगों के ऊपर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुझे इस तरीके से बुलाया गया हो और मुझसे ये पूछा गया हो, इस किस्म के सवाल किए गए हों कि सिविलियंस पे जो अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जबकि आज एक तंजीम, छोटी सी तंजीम हमास, जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका फ़लस्तीन की गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब वो किसी किस्म का कोई इस तरह का वो करती है मामला तो सवालात खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोसनाक, दुनिया के लोगों ने इसको